आज जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. After that we will enter in mirror. Then mirror, what is mirror? Types of mirror. After that we will discuss about different part of mirror. Then Cartesian sign. Then first topic is reflection of light. What is reflection of light? When light ray falls on a polished surface, then it bounces or return in the same medium with opposite direction. This phenomena of light is called reflection of light. In this figure, this ray shows the incident ray. This is an incident ray because it is falling on the surface. This is a returning. It is a reflected ray. A reflected ray. This line, which is directly or perpendicular to the surface, it forms a right angle with surface. This line is a normal. So with opposite direction, this phenomena of light is called reflection of light. Means returning of light, bouncing back of light is called reflection of light. जब लाइट रे किसी पॉलिश सरफेस पर स्ट्राइक होता है या गिरता है, then bounce और return वापस जाता है in the same medium वही है with opposite direction. इसका डायरेक्शन चेंज होता है, यहाँ से आ रहा इधर जाएगा, इधर से आएगा इधर जाएगा. This phenomena of light का ये phenomena को अपन कहते हैं reflection of light. So this is a figure which is showing the reflection of light. This is a plane surface. Now what is this ray? This ray is incident ray. Incident ray. What is incident ray? A ray which falls on surface called incident ray. This ray is incident ray. We can denote it by PQ. तो यहाँ लिख सकते हैं PQ H incident. This is a RS. This ray is returning or bouncing back. A ray which returns after strike in the surface. सरफेस के साथ स्ट्राइक होने के बाद जो वापस जाता है, उस रे को सरफेस कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. इस रे को अपन किस में बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. वापस जाती है रे, एंड यहाँ हम इंडिकेट कर सकते हैं आरियास इज रिफ्लेक्टेड. नाउ ये एंगल थीटा आई, ये एंगल थीटा आई इंडिकेट टू इंसिडेंट एंगल ऑफ थीटा आई. An angle formed between incident ray normal with the incident point is called incident angle. This angle is incident angle. An angle is formed between incident ray surface and normal. Reflected angle or theta, an angle formed between reflected ray normal with incident point called reflected angle. Means theta, this angle is reflected angle and this angle is incident angle. Reflected ray
normal and this is incident point. Normal line, a perpendicular line, this surface of mirror is called normal of mirror. इस लाइन को अपने normal line because it form a right angle, this is directly perpendicular, it falls on surface, so this is a normal line. On the basis of these phenomena, इस इंसिडेंट के बेस पर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं. लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट क्या है? इंसिडेंट रे यानी ये, रिफ्लेक्टेड रे मींस ये, नॉर्मल मींस ये, एट इंसिडेंट पॉइंट ओ ये लाइज आर एसेंशियल. ये तीनों का जो पॉइंट है वो एक ही जगह है, इसलिए लिखते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट लाइज ऑन ए सेम प्लेन. एंगल क्या है? सेकंड लॉ that is based on angle of reflection is always equal to that of angle of incident. Angle of reflection ये और angle of incident ये, तो theta I is equal to theta, but this law is only applicable for a regular reflection, means जहां पर हमारा सरफेस क्या होगा? जहां पर हमारा सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस, फ्लैट सरफेस में ये लॉ एप्लीकेबल है. जिगजैग कर्व सरफेस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन वहां होगा और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में थीटा आई नॉट इक्वल टू थीटा आर. दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पॉइंट आपके सामने ये रहा. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको नाउ यू कैन नोट. रोकिएगा, अब अगले टॉपिक में चलते हैं. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मिरर. व्हाट इज मिरर? A part of glass having one surface polished is called mirror. This is a mirror. मतलब ग्लास का एक पार्ट जिसमें एक साइड में ग्लास में वन सरफेस आपका क्या होगा? पॉलिश्ड. A part of glass having one surface polished called mirror. मिरर के दो टाइप है. नंबर 1 प्लेन मिरर एंड नंबर 2 स्फेरिकल मिरर. प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, these are the part of mirror. पहले प्लेन मिरर क्या है? A part of flat glass, plane having a surface polished called plane mirror. मिरर जो हम अपने घर में यूज करते हैं डेली, वो किसमें आता है? वो प्लेन मिरर. A part of flat glass having one surface polished is called plane mirror. इसमें जो इमेज बनता है, the image formed by a plane mirror are virtual, erect and laterally inverted. Laterally inverted यानी उसकी जो डायरेक्शंस है, जब मिरर के सामने खड़े होकर के हम अपना इमेज देखते हैं तो मुझे क्या दिखता है? लेटरली इन्वर्टेड. मेरी लेफ्ट आई राइट साइड और राइट आई लेफ्ट साइड दिखता है. दिस इज ए, ऐसा होता क्यों? क्योंकि बिकॉज सपोज करो कि ये आपके पास में मिरर है और उसमें जब मैं ये इंसिडेंट रे यहां से आता है, ये हमारे पास आई है सपोज करो यहां से, और यहां इंसिडेंट हो करके और इसमें इधर जाता है. ये सेकंड आई, फर्स्ट आई सेकंड. तो इसका यानी इंसिडेंट रे ये जाकर के रिफ्लेक्ट हो रही है इसमें. सिमिलरली इसकी जो लाइट है यहां से वो जा रही है इसमें, इसलिए इसका इमेज यहां और इसका इमेज यहां. तो लेफ्ट सपोज करो ये है हमारा लेफ्ट, दिस इज ए लेफ्ट आई एंड दिस इज ए राइट आई. तो लेफ्ट आई का इमेज राइट में बन रहा है, इसलिए लेफ्ट आई हमें राइट साइड दिखता है, राइट आई का इमेज मुझे लेफ्ट में मिल रहा है, इसलिए लेफ्ट राइट आई हमें लेफ्ट में दिखता है. तो और उसका जो डायरेक्शन
डायरेक्शन है वो क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, अपोजिट। इसमें जो साइड इमेज का साइड है, साइड ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, ऐसा मुझे फील होता है उसमें, क्योंकि वहां पर तो लेटरली इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट है, इरेक्ट यानी सीधा, मतलब हाइट ऑफ h डैश हाइट ऑफ इमेज है और h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो दोनों इक्वल होते हैं। तो दिस इज ए प्लेन मिरर। नाउ वी मूव टुवर्ड द स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? इसमें इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ए पार्ट ऑफ कर्व्ड ग्लास, उसमें था फ्लैट, a part of curved glass having one surface polished, one surface polished, called spherical। स्फीयर वो जो बॉल आता है, बॉल जैसे शेप में देखिए आप उसको, तो पार्ट ऑफ कर्व्ड ग्लास हैविंग वन सरफेस पॉलिश्ड इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारे पास में दो टाइप के हैं। ऐसा इसमें देखिए आप ये सपोज करो मेरे पास में ऐसा सर्कुलर शेप है। अब इसमें इस सर्कुलर शेप में मैं पॉलिश कर दिया वन साइड ये हमारे पास दो साइड है, दो साइड, ये अंदर का इनर साइड और ये बाहर का लेकिन आउटर साइड। तो इनर साइड और आउटर साइड सपोज कीजिए मैंने इसको यहां से ऐसा पॉलिश कर दिया और हाफ पार्ट में मैंने इधर से पॉलिश कर दिया। तो एक साइड में हमने पॉलिश किया और एक साइड मेरी रिफ्लेक्टिव रह गई। मान लीजिए मैंने बाहर से पॉलिश कर दिया ऐसा पूरे दिन टोटल ये, तो आउटर साइड हमारा पॉलिश्ड है, आउटर साइड पॉलिश्ड है, इनर साइड रिफ्लेक्टिव। तब लाइट में किधर से डालूंगा, अंदर साइड, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, पार्ट में डिवाइड करें। तो ये जो सरफेस बनता है मेरा सर्कुलर शेप में स्फेरिकल, ए पार्ट ऑफ कर्व्ड ग्लास, कर्व मतलब ये सीधा नहीं है, टेढ़ा है, हैविंग वन सरफेस पॉलिश्ड इसका स्फेरिकल मिरर। पहले आता कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें जिसको मैंने पॉलिश किया था, सपोज कीजिए कि मेरे पास में ऐसा स्फेरिकल मिरर है, इसको मैंने दो पार्ट में कट कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड किया तो मेरे को दो ऐसे मिरर मिल गए, एक ये मिल गया और एक ये आ गया, दो पार्ट मेरे को। अब इस टू पार्ट में मैंने एक साइड यहां पर इसमें मैंने बाहर से पॉलिश कर दिया और इसमें मैंने अंदर से पॉलिश कर दिया ऐसे। तो इसमें हो क्या गया, आउटर साइड पॉलिश्ड इनर साइड रिफ्लेक्टिंग, और इसमें हो गया इनर साइड पॉलिश्ड आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग। तो जिसमें आउटर साइड पॉलिश्ड और इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है, दिस सरफेस और दिस मिरर इज कॉन्केव मिरर। A part of spherical mirror having outer side polished and inner side reflecting, और outer side और surface भी लिख सकते हैं यहाँ पर, outer side और surface, outer surface or side polished and inner side or surface reflecting called concave mirror। इसमें पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर हैविंग इनर साइड और सरफेस भी ले लेते हैं यहाँ पर, इनर साइड और सरफेस पॉलिश, अंदर से पॉलिश किया, एंड आउटर साइड यानी बाहर से रिफ्लेक्टिंग कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। इसमें जो इमेज बनता है, अब इसका जो फिगर मेरे पास में आएगा वो कैसा होगा, इसका जो
अब जब देखोगे तो इसका फिगर आपको ऐसा जहां भी मिलेगा, यदि आपके पास में ऐसा फिगर आता है बाहर से पॉलिश किया हुआ, तो ये मिरर आपका क्या होगा, कॉनकेव मिरर। ऐसा से इन कॉनकेव मिरर इमेजेस फ्रॉम रियल इन्वर्टेड एज पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। रियल इन्वर्टेड मतलब उल्टा, बट एंड इन्वर्टेड एट एज पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट को जहां रखोगे उसके हिसाब से आपको इमेज मिलेगा। जनरली होता क्या है कि जितना हम दूर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट आर फर्दर फ्रॉम द मिरर देन इमेज आर वेरी स्मॉलर। स्मॉल साइज मींस लाइक पॉइंट साइज, सम टाइम एट इनफिनाइट मिलता है कहीं कहीं। तो जितना दूर रखेंगे ये ऑब्जेक्ट को, इमेज उतना छोटा मिलेगा, और जितना मिरर के पास में लाएंगे उतना बड़ा मिलेगा। ये अभी आपको अपने आगे इसमें डिस्कस करेंगे। इन कॉनकेव मिरर इमेजेस फ्रॉम रियल इन्वर्टेड एंड एज पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसीलिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया है, फिक्स नहीं है तो। बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, मिरर में इस पर डिस्कस करूंगा मैं, पोल और प्रिंसिपल फोकस कहां मिरर के, तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब रखूंगा तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट सीधा होगा लेकिन इमेजिनरी होगा, रियल नहीं आता। सिमिलरली व्हेन वी पुश टुवर्ड द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में जब चलते हैं ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, मिरर मैंने इसलिए लिया कि एक साइड में ग्लास पॉलिश्ड है। यदि ग्लास एक साइड पॉलिश्ड है तो मिरर है, यदि वो ट्रांसपेरेंट है पॉलिश्ड नहीं है दैट इज ए पार्ट ऑफ ग्लास हैविंग इनर साइड पॉलिश्ड एंड आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। इन कॉन्वेक्स मिरर, अब ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इन कॉन्वेक्स मिरर ये इमेज इसको मैं यहां से हटा दूं तो ये आपका क्या आ गया, कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा इमेज आपको मिलता है तो वो कॉन्वेक्स मिरर का होगा। इन कॉन्वेक्स मिरर इमेजेस फ्रॉम वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इसमें इमेजिनरी इमेज मिलता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट ठीक जैसा यहां पर था। बट मैं पोल एंड प्रिंसिपल के बीच, प्रिंसिपल फोकस के बीच में रख रहा था तो वर्चुअल और डायरेक्ट मिला था। इसमें इसके बीच में जब रखूंगा तो रियल एंड इन्वर्टेड, इसके बीच में पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इमेज कैसा मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब मिरर का जो कुछ पार्ट आते हैं उस पर डिस्कस करते हैं, पार्ट्स ऑफ मिरर। मिरर में जब देखते हैं तो हमारे पास में दो टाइप के मिरर हैं, रियल और इन्वर्टेड इमेज हमें कॉनकेव में मिल रहा है, कॉन्वेक्स में भी एक जगह पर मिल रहा है। तो मिरर जब सपोज ये मैं एक मिरर का फिगर रखता हूं, ये मिरर हमारा सपोज करो ये पहले कैसा था, ये स्फेरिकल ग्लास है ना, तो ये ऐसा। अब इसको मैंने ये इसका क्या आता है सेंटर, इसको मैंने इसमें से बीच में से कट कर दिया और इसमें ये सेंटर है सी, यहां से इसमें मैंने आउटर साइड पॉलिश कर दिया, ये तो आउटर साइड पॉलिश हो गया तो इनर साइड क्या आ गया मेरा, रिफ्लेक्टिंग। आउटर साइड पॉलिश, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग, इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इज ए कॉनकेव मिरर। हमारा जो ये मिरर है वो क्या कौन सा है, कॉनकेव। अब ये पूरा m और इसको मैंने m डैश ले लिया, ये कर्व डायमीटर यानी ये टोटल लेंथ यहां से और यहां तक का पूरा कर्व डायमीटर, इसको क्या डिफाइन करेंगे, कर्व डायमीटर ऑफ
mirror is called aperture. A P तो ये आपका जो कर्व डायमीटर है उसको हम इसमें क्या बोलते हैं, दैट इज अपर्चर। ये पूरा लेंथ यहां से और mm दैट इज अपर्चर। नाउ इस मिरर में ये सेंटर पॉइंट, सपोज कीजिए इसको मैंने सेंटर पॉइंट लिया और ये जो सेंटर पॉइंट है बीच का, इसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमारा क्या है, इसको मैंने P लिया तो इसको मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट डिफिनेशन, मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। उसको हम बोलते हैं पोल। इससे इंडिकेट कर रहे हैं P से, पोल ऑफ मिरर, दिस इज ए पोल। तो ये हमारा जो पॉइंट आता है वो है पोल। अब यहां से एक लाइन सपोज करो मैंने इसमें से ये डाल दिया, यहां से ये लाइन यहां पर सी है। इस लाइन को क्या बोलेंगे, दिस इज ए इमेजिनरी लाइन पासिंग, कहां से जा रही है ये, पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मिरर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन को प्रिंसिपल है, वो इस लाइन को, ये लाइन जो हमारी गई है इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका, ये सेंटर है, ये इसका क्या हो जाता है, रेडियस। यहां से क्योंकि इसको मैं ऐसा घुमा देता हूं, पूरा पूरा घुमाएंगे तो ये टोटल डायमीटर और ये जिधर से जाएगा वो रेडियस हो जाता है। तो देन थर्ड, रेडियस डिस्टेंस between center and pole of mirror is called रेडियस। अब सपोज कीजिए कि एक लाइन यहां से पास होती है, ऐसा ये रे, लाइट रे, आफ्टर ये यहां से रिफ्लेक्ट होगा और या दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इसको डिफाइन क्या करेंगे, line incident after reflection at which point intersect to the principal axis called focus, principal focus or principal focus। इसको इंडिकेट करोगे आप मिरर। ये आपका, ये हमारा दिस पॉइंट के लिए प्रिंसिपल फोकस। अब ये डिफरेंस, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है,
distance between pole and principal focus is called focal length. Length of mirror. तो दिस इज ए फोकल लेंथ और इसको इंडिकेट करते हैं अपने स्मॉल एप्स। तो ये डिस्टेंस मेरी क्या हो जाती है फोकल लेंथ और ये डिस्टेंस मेरी हो जाता है रेडियस यानी आर। सो दीज आर सम डिफिनेशन फॉर द मिरर। मिरर क्या है अपार्ट ऑफ ग्लास है कौन सा इस पॉलिश कार्ड मिरर और इसमें कर्व डायमीटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ये पूरा मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पी ये एनी इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मिरर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइन जो सी में से पास हो रही है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ मिरर। ये आपका ये डिस्टेंस क्या हो जाता है टोटल रेडियस। लाइन इंसिडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन एट व्हिच पॉइंट इंटरसेक्ट और मीट इंटरसेक्ट और इसको अपने देखते हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर। ये पॉइंट आपका प्रिंसिपल फोकस है रिफ्लेक्शन के बाद यहां पर स्ट्राइक कर रहा है और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो ये these are the some common point of definition for the mirror. After that, how images are formed? Then image formation. Image formation means how images are formed in a mirror. Then we are discussing about spherical mirror. In plane mirror images are formed real, virtual and direct, not real. Under the spherical mirror, there are two types of spherical mirror, concave and convex. In concave mirror, images form real and inverted. तो हम इमेज का फॉर्मेशन पहले किसमें देखते हैं concave mirror में। In concave mirror नंबर 1 वहां पर मैंने लिखा था कि एज पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा इमेज बनेगा। तो पहला सपोज कीजिए फर्स्ट नंबर में मैंने ये मिरर लिया ये देखिए अब ये पोल हो गया ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस और ये इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होगा और ऐसा यही पर इमेज बनेगा क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कहां है मुझे पता नहीं। तो एक यू है वो यहां लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है एट इनफाइनाइट मालूम है। पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगा एट प्रिंसिपल फोकस मींस एट साइज एंड नेचर ऑफ इमेज होगा नेचर ऑफ इमेज। इसमें क्या आता है रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड मतलब ऐसा समझ लीजिए आपकी पॉइंट से एक ऐसा बनेगा बहुत छोटा
रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। अब ये पॉइंट हमारा क्या है, सी सेंटर। अब सपोज कीजिए कि मैंने ये ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया, तो अब भाई अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे पता चल रहा है कहां है। ये हमारा जो इमेज है वो इधर है, यानी एक रे यहां से भी पास होगा ऐसा, तो यहां पर इमेज बनता है। सेकंड में जब मैं इंटर मारता हूं सेकंड इमेज में, तो क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है, बियॉन्ड सी फॉर सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां बन रहा है हमारा, सी और एफ के बीच में, फोकस तो ये था। ये आपका पॉइंट कौन सा है, फोकस, जहां पर स्ट्राइक होने के बाद मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में इमेज बनना है, तो लिखेंगे अपने बिटवीन सी एंड एफ, सी फॉर सेंटर, एफ फॉर प्रिंसिपल फोकस। रियल इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड प्लेस किया जाएगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसको जैसे जैसे मैं यहां से सपोज कीजिए कि मैंने ये ऑब्जेक्ट को थर्ड, ये लाइन हमारी प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल लाइन, और इसको यहां पर मैंने सी सेंटर लिया। अभी ऑब्जेक्ट मैंने सी पर रख दिया, ये इमेज जाएगा, ये इंसिडेंटल है और ये ऐसा है, ये फोकस और इमेज हमारा बना। ये है इमेज, तो इसमें कैसा इमेज आ रहा है देखिए। थर्ड नंबर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, मैं लिखता हूं एट सी, यानी एट सी, एट सेंटर, सेंटर यानी सी में। तो इमेज कहां बन रहा है, एट सी सेंटर में। कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट सेम साइज एज, जिस पर जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बनेगा। इसमें से रिजल्ट क्या मेरे को मिल रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोजर जा रहा है वैसे इमेज का जो साइज है वो बढ़ता जाता है। ऑब्जेक्ट का साइज नहीं, इमेज का साइज। ऑब्जेक्ट मिरर के जैसे जैसे क्लोजर जा रहा है, साइज ऑफ इमेज गोइंग टू बी इंक्रीजेस। थर्ड, मैंने यहां से ये ऑब्जेक्ट को यहां से हटाकर, और ये लाइन हमारी सेंटर लाइन है, सी है ये, और बीच में यहां ये किधर जाएगा, ये आएगा आपका इधर, यानी ये इमेज जो है यहां ऐसा। तो फोर्थ नंबर में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सी, बिटवीन, ये एफ है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड सी फॉर सेंटर एंड एफ फॉर प्रिंसिपल फोकस। तो इमेज कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी, सी से दूर, बियॉन्ड सी। कैसा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो फोर्थ और बिटवीन सी एंड एफ हमने प्लेस किया, तो इमेज बना बियॉन्ड सी, यानी यहां बन रहा है आपका
अब मैंने इसको F पे रखा, F यानी ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे रख दिया F पर, ये F हमने लिया है और यहां से ये इधर जाए और ये इस प्रकार से F पे रखें। तो जो फर्स्ट कंडीशन हमारी थी वो कंडीशन आ जाती है। कैसे आता है? क्विक नंबर पोजीशन ऑफ एट F मींस प्रिंसिपल फोकस। कहां आया? एट इनफाइनाइट रियल इन्वर्टेड एंड हाईली enlarged, highly enlarged। F पे रखा तो पोजीशन ऑफ इमेज F इनफाइनाइट कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड एंड हाईली enlarged। और जब ये ऑब्जेक्ट को मैं यहां रखता हूं, when we place this object between pole and principal focus means यहां, ये between pole and focus, principal focus, तब ये बनेगा इमेज का बनेगा बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे। इसको लिखोगे बिहाइंड द मिरर। एंड कैसा बनेगा? वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज, बड़ा बनेगा। वर्चुअल इरेक्ट यानी आपका इमेज ये साइड है, ये कुछ ऐसा। तो इन दिस वे इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जस्ट इसका अपोजिट, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में होता क्या है? ऐसा, दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर और इन दिस साइड वी मेक पॉलिश्ड, इनर साइड पॉलिश्ड, आउटर साइड रिफ्लेक्टिव। अब ऑब्जेक्ट में इधर से जब डालता हूं, वो सॉरी रे अप्लाई ये जाता है कि ये ऐसा, और ये कर्व सरफेस का तो इसका रिफ्लेक्शन ये इधर हो गया, ये इधर, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं, ये इधर और ये इधर। इनका जो इमेज आता है वो ऐसा, यानी यहाँ पर जो इमेज बने फोकस वो किस में आता है? दैट इज अंडर द वर्चुअल, बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, इसको हमने फोकस लिया यहाँ पर रखेंगे तो ये बिहाइंड द मिरर और इसमें आता है रियल एंड इनवर्टेड, यानी इमेज हमारा ऐसा। तो बेसिकली इन द मिरर में ज्यादा से ज्यादा आपका क्या है? कॉन्केव मिरर है, और लेंस में जब मैं चलूंगा तो लेंस में आएगा ज्यादा से ज्यादा कॉन्वेक्स। अब आइडियल साइन फॉर मिरर, देन we take a Cartesian plane, suppose करो the Cartesian ग्राफ के लिए जो प्लेन दिया था ये, this is a Cartesian plane। अब इसमें this is origin point, origin point में ये डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव राइट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव लेफ्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन डाउनवर्ड नेगेटिव, और दिस डायरेक्शन अपवर्ड इट इज ए पॉजिटिव। अब सपोज करो कि वी प्लेस्ड अ मिरर, हमने मिरर यहां पर प्लेस कर दी, दिस इज ए तो मैं मिरर जैसे ही मैंने इसमें प्लेस किया तो दिस मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, ये पोल हो गया। अब यहां से मैं मेजर करूंगा, जो भी मेजरमेंट पोल में लेते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? R distance in mirror measured from pole। सारा डिस्टेंस जो है मिरर में कहां से लेंगे? पोल से।
तो पोल में ये डायरेक्शन राइट होगा, दिस डायरेक्शन लेफ्ट, और ये डायरेक्शन अपवर्ड और ये डायरेक्शन डाउनवर्ड। पहला इसमें फर्स्ट पॉइंट मेरे को मिलता है लेफ्ट and left side, left direction, distance, and downward distance, taken as negative मीन्स सपोज कीजिए कि ये डिस्टेंस हमारी 4 है, तो इसको मैं लिखूंगा -4। वैसे माइनस मीन्स माइनस इसमें इंडिकेट कर रहा है कि इमेज या ऑब्जेक्ट या जो भी थिंग्स है वो किस में जा रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है। माइनस सिंबल और नेगेटिव सिंबल इंडिकेट्स टू द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन अपने 4 है तो उसको -4 लिखेंगे। सिमिलरली ये डायरेक्शन भी 2 है, ये डिस्टेंस हमारा मिरर से 2 आ रहा है, तो ये डिस्टेंस भी हम किस में लेंगे, डाउनवर्ड में है, तो उसको लिखेंगे -2। और सेकंड पॉइंट है राइट डायरेक्शन एंड अपवर्ड। डायरेक्शन और डिस्टेंस, right distance and upward distance taken as positive। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा ऐसा, ये हमारा 2 सेंटीमीटर का है ऑब्जेक्ट, तो इसको ये अपवर्ड है इसलिए ये 2 सेंटीमीटर रहेगा, और इसका इमेज इधर बन रहा है, ये सपोज कीजिए कि 1 सेंटीमीटर का है, ये डाउनवर्ड बन रहा है, इसलिए इसको मैं लिखूंगा -1। -1 मींस डाउनवर्ड, +2 मींस अपवर्ड। या ये डिस्टेंस जब मैं देखूंगा ऐसा, कंसीडर तो सपोर्ट से होगा, तो ये डिस्टेंस भी नेगेटिव आ रही है और ये डिस्टेंस भी नेगेटिव। ये डिस्टेंस में सपोज करो कि मैंने यहाँ PB लिया, ये A ले लिया और ये B ले लिया, तो PA इज, सपोज कीजिए कि PA आपका 5 है, तो PA मैं लिखूंगा PA =-5, और ये डिस्टेंस यदि मेरा 3 है तो PB मैं लिखूंगा -3। बट सब कोई इमेज इधर जा रहा है ये डायरेक्शन में यहाँ, और ये 2 है, मान लीजिए मैंने O ले लिया, तो यहाँ PO मैं लिखूंगा 2, या मेरा ये हाइट जो है ये हाइट इधर जा रहा है तो 1 का है, इसको लिखूंगा मैं 1। तो अपवर्ड डायरेक्शन एंड राइट डायरेक्शन को लिखेंगे इसमें पॉजिटिव। तो दिस इज ए कार्टेशियन साइन। ऑल डिस्टेंस ऑफ इन मिरर मेजर फ्रॉम पोल, सारा डिस्टेंस यानी स्केल का जो 0 पॉइंट है वो आपका पोल में होगा। उसके बाद आप लेफ्ट डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन डिसाइड करोगे। लेफ्ट डायरेक्शन का जो डिस्टेंस है और डाउनवर्ड डिस्टेंस है वो जो भी आएगा उसको नेगेटिव इंडिकेट करना है। राइट डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन का डिस्टेंस जो भी है 4 है, 3 है, 2 है, दैट विल बी डिनोटेड एज ए पॉजिटिव।